Jungle. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य से प्राप्त माहिती के आधार पर आज सिकल सेल एनीमिया का विशेष अहवाल डॉक्टर इटालिया के द्वारा वलसाड़ के सिकल सेल एनीमिया के प्रथम मरीज, जो कि भारत के भी प्रथम मरीज है, इस दर्द को, इस बीमारी के बारे में विशेष चर्चा डॉक्टर इटालिया के द्वारा। हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य से सीधी बात डॉक्टर श्री के साथ। आइए जानते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उज्जवल भारत न्यूज़। Greetings to all sickle cell disease patients all over the world on the occasion of Sickle Cell Awareness Day 2020. I am Dr. Yazdi Italia from Gujarat, India. It is always nice to see better life of our sickle cell disease patients in India. In our Gujarat state, 9.8 million tribal population has been screened for sickle cell gene, and we have traced 29,600 sickle cell disease patients and 0.77 million sickle cell trait. I have not heard that such a large population is ever screened for sickle cell gene either in any of the Indian state or anywhere in the world. Today, all these 29,600 sickle cell disease patients are getting free medicines like folic acid and painkillers at the doorsteps of their house through government multi-purpose health workers. Even hydroxyurea and pneumococcal vaccines are also provided free of cost from nearby health centers. Nowadays, hydroxyurea is being used to prevent future complications in young patients. All patients are paid rupees 500 per month in their bank accounts for food supplement. We have sickle cell counselors who are always in touch with sickle cell disease patients at least once in a month. Counselors even help them for hospitalization and help in emergency for blood transfusion, which is now free of charge all over India. Counselors also look at the prevention of sickle cell disease childbirth. They manage for prenatal diagnosis of all high-risk antenatal couples. Prenatal diagnosis is provided free of cost by Government of Gujarat to all sickle cell disease patients as well as thalassemia high-risk couples. So far, hundreds of births of sickle cell disease as well as thalassemia major were prevented in Gujarat. This program was initiated in 2006 under the dynamic leadership of then Chief Minister Honorable Shri Narendra Modi, who is now Prime Minister of India. And in 2011, this program was awarded Prime Minister's Award by then Honorable Prime Minister Shri Manmohan Singh, as it was a model program which was going to improve the health of large number of tribal population in India, which was so far neglected. Being a model program, other states of India also adopted this Gujarat PET. I am sure that under the leadership of Honorable Shri Narendra Modi as Prime Minister of India, sickle cell disease patients are going to be looked after in a better way than before. Sickle cell anemia, thalassemia and hemophilia are now included as a part of National Health Mission and also recognized as one of the disabilities. I am really very happy to see that this program has become national program and wish all sickle cell disease patients a very happy and healthy life throughout their life. Jai Hind. माना बावन भाई खुशाल भाई पटेल आप कहाँ का रहने वाले हैं? वाकल वलसाड़ में रहता हूँ। वाकल वलसाड़ में गुजरात में है? गुजरात में है। ठीक है। आपको सिकल सेल डिजीज की बीमारी है ना? हाँ, अच्छा है। हाँ, तो कभी मालूम पड़ा आपको? तो वलसाड़ के इटालिया साहेब बताया। कौन सी साल में बताया? तो 1978 में 1978 में? हाँ, वो तो 42 साल हो गए, बहुत 42 पुरानी साल। बात है। हाँ, 42 साल हो गए। अच्छा, तो अभी आप क्या दवा लेते हैं कुछ? हाँ, फॉलवाइट लेते गोली हैं, लेते हैं। फोलाइट लेते हैं। पानी कितना पीते हैं? पानी दररोज कम से कम 2-3 लीटर पी जाते हैं। अच्छा, और
जब भी आप बीमार थे तभी आपको क्या हुआ था जो 1978 में आपकी बीमारी पकड़ी गई सिकल सेल की? उस समय आपको क्या हुआ था? खून कम हो गया था? वो बहुत ये कम हो गया। अब पीलिया हुआ था? पीलिया हुआ था। हाँ, पीलिया हुआ था। पीलिया। खून दिया गया था? हाँ, 3-4 बोतल ले लिया। अच्छा, हाँ। ठीक है। अभी कोई बीमारी है आपको? अभी कुछ है ही नहीं, ज्यादा नहीं है कुछ? ज्यादा नहीं है। अच्छा, सरकार आपके लिए क्या कर रही है? मैं 500 रुपया मुफ्त में दे सकता है। खाली पैसा ही देती है कि पैसा दवाई भी देती है? दवा भी मुफ्त में देती है। दवा मुफ्त में देती है? मुफ्त में देती है। अच्छा, ठीक है। आपके परिवार में कितने लोग ऐसे हैं कि जिसको सिकल सेल है? तो 3-4 लोग के सिकल सेल है, उनको सबको मालूम है? मालूम है। हाँ, हाँ, दवा बराबर करते हैं? करते हैं। हाँ, हाँ? और अभी आप लोग कैसे हैं? खुश हैं या नाखुश हैं ये रोग से? है। ये रोग से आप खुश हैं? हाँ, ये खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि जिंदगी अच्छी चल रही है पहले से जिंदगी अच्छी चल रही है दवा करने से? करने से। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, आपके परिवार वाले सब आपके साथ रहते हैं? हाँ, साथ रहता है। अच्छा, तो हम उनके साथ एक फोटो खींच लेंगे देख आपका। लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रमाबेन पटेल, मेरी उम्र 80 वर्ष की है। मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा वतन धर्मपुर तालुका का एक छोटा सा गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस सिकल सेल के बारे में मुझे पहले कुछ ख्याल नहीं था, मगर जब डॉक्टर उदय भाई को मैंने बताया और ये ब्लड लेके हमारा यहाँ बहुत वर्षों से डॉक्टर इटालिया लेबोरेटरी चलाता था और यहाँ बलसाड़ में कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी और डॉक्टर इटालिया पहले से इसमें काम करता था। डॉक्टर इटालिया ने ये बताया कि उसको सिकल सेल पॉजिटिव है और मेरी उम्र 30 इयर्स की थी तब ये मालूम पड़ा, यानी 30 इयर्स की उम्र थी तब मुझे मालूम पड़ा। और डॉक्टर इटालिया ने और डॉक्टर उदय भाई ने हमको गाइडलाइन दी कि तुम फोलिक एसिड लो और ब्लड कम हो जावे तो ब्लड लेना पड़ेगा, मगर तुम केयर रखो, अच्छी केयर रखो तो ब्लड कम नहीं होएगा। पहले तो ब्लड लेना भी पड़ा, कुछ बहुत तकलीफ हो जाती थी, बॉडी एक होती थी और खाना पीना बंद हो जाता था, ब्लड डाउन हो जाता था। मैं 2-3 बार क्राइसिस में भी आ गया था और तब ब्लड लेना पड़ा। मगर जब से ये मुझे गाइडलाइन मिली तब से मैं अभी स्वस्थ हूँ और मैं अच्छी तरह से मेडिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ। साथ साथ में मैं गायत्री का उपासक हूँ, गायत्री मंत्र का सतत गायत्री मंत्र का रटन करता हूँ, ध्यान करता हूँ और साथ साथ में योगा भी करता हूँ और मेरा मॉर्निंग वॉक भी चालू है। इसके वजह से हमारा तंदुरुस्ती अभी बहुत अच्छी है और मैं मॉर्निंग में 1 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ और प्रैक्टिस करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। 8 घंटा काम करता हूँ और थकावट नहीं आती है। मेरा हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर जाता ही नहीं, 9-10 के अंदर रहता है, तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। और लास्ट 10 इयर्स से मैंने कोई ब्लड नहीं लिया और बहुत ठीक से चलता है। इसके लिए सिकल सेल डिसीज के लिए किसी को कोई घबराहट रखने की जरूरत नहीं, मगर डॉक्टर की मार्गदर्शिका के हिसाब से उसको चलना चाहिए, तब कुछ हो नहीं सकता। मेरा 80 इयर्स हो गया तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, प्रैक्टिस अच्छी करता हूँ और अभी भी मैं 2-5 बरस 10 बरस काम करूँ ऐसी मुझे ख्वाहिश है और लोगों की बहुत इच्छा है, क्योंकि मैं सिकल सेल वाले जो पेशेंटों को बहुत अच्छा मार्गदर्शक हूँ सबको। और मेरी बेटा की बेटी भी अभी सिकल सेल डिसीज है, ये भी MD कर रही है, पैथोलॉजिस्ट कर रही है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा गाइड भी हूँ इधर यहाँ के लिए और सबको मार्गदर्शन देता हूँ और सिकल सेल वाले को बहुत गाइड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पण दे सकता हूँ। इसके लिए भगवान का भी आभार मानता हूँ और सिकल सेल वाले किसी को डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। सिकल सेल वाला नियम से चलेंगे तो अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। मैं 80 वर्ष का हूँ तब भी जी सकता हूँ।